हेलो। हेलो। Hi, Amul. Good evening. हाय, गुड इवनिंग। Yeah. So I hope I'm audible. The screen is visible and यस यस। everything is being recorded. So यस। we will wait for one more minute, one or two, and then we will continue with our today's session. I hope the notebook which I have shared uh, yesterday, the notebook you tried executing it, and like it was for central limit theorem, and I hope you checked that. नो, आई हैड नॉट चेक, बट टुडे आई विल चेक। Okay, okay, all right. So yeah, is there any query, Amol? नो, आई हैड नॉट चेक द Okay, okay, चेक इट। sure, sure. टुडे आई विल चेक। Okay, yeah. So let's wait for one more minute and we will start. Let's see. Okay, I think we shall start. Others will join as per their availability. But as we have a limited time of 1 hour, so I think we can start and let's explore the new things today. And also just make sure that whatever we have covered, because I know statistics is the subject. If you dive deeper and deeper, and if you are new to new in the sense this terminologies and these things, so like number of years we have already passed the statistics wala part, and then again these terms are repeating because we are going towards the machine learning, and because of this kind of terminologies which we are looking or we are exploring in probability. So it happens that there are some kind of confusion is also there कि भाई what is this and what is mutual, non-mutual. Here whatever we are exploring or learning, these are just rules. So what is the need? What is the use of it? So the thing is, as I said, the picture is very clear because machine learning is all about whenever we will be getting the results, the responses, what is the prediction from machine learning. So that will be all about the inferences. And inferences, whenever we say inferences, तो अनुमान जो है वो आते हैं statistics से, probability से. So, like things which are not certain in the sense we can calculate these outputs or these outcomes in terms of probability, mostly probability. And that's the reason uh, we learn this statistics and probability and the terminologies of statistics. So we started with that and we have explored so many terminologies. We have even checked what is the important, why it is needed, how we are doing. We have seen all these key concepts, the conceptual things, the theoretical part, continuous, discrete, ordinal, nominal, population. We have seen yesterday. We explore it. Parameter, what is parameter? A sample, what is sample? Then probability theory we started, and then we started with the distribution of probabilities, uniform distribution, normal distribution, then skewness we have explored so far. And then yeah, like as I said, ki probability and simple conceptual things and some events we have explored कि कैसे होता है classical, empirical, subjective kind of probabilities. So on a example basis, we have explored it. Maybe we will like explore it in a deep manner in the sense कि by the terminology wise we are exploring कि yeah, what is mutual exclusive, then what is a non-mutual exclusive terminology, and the uh, like with these topics and all we are exploring, but what is the use of it and किस टाइम पे कौन सी uh, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज करना है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज करना है, कैसे उसके रूल्स रहेंगे. जैसे कि वी हैव सीन द एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल्स काइंड ऑफ थिंग्स हमने देखे. फिर एग्जांपल्स के तौर पे तो हमने यहाँ पे काफी सारा डिस्कशन भी किया और एग्जांपल्स भी लिए. ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में देखा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में देखा. बट
आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग तो हुई आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, किसे कहते हैं, उस किस टाइप के वो इवेंट्स रहेंगे। ठीक है, वो हमने कल एक इनफ वे से देखा। बट आई थिंक वी हैव टू मेक इट मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ओवर इट, सो दैट कि जब भी इस टाइप के डिस्कशंस होंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तब तब जाके यू माइट थिंक इन द वे ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड उनका जो ऑकरेंस है, किस इवेंट का किस इवेंट्स पे डिपेंडेंसी है। जैसे कि मैंने बोला, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, एंड ऑल्सो लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव उसके टाइप्स होते हैं। तो उनको अगर एक्सप्लोर करना है, कॉन्फिडेंटली उसके बारे में जानना है, देन वी शैल स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस। सो एग्जांपल वाइज तो हमने देख लिया कि देखो नॉन म्यूचुअल क्या रहेगा, ईटिंग एंड वॉचिंग टीवी। ओके, दिस इज लाइक डू दिस टू एक्टिविटीज आर we can do simultaneously, that's why it is called non mutual exclusive. Okay, that is fine, we have understood it properly, clearly. फिर जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो इवेंट रहेंगे उसमें क्या, एक तो ये होगा, एक तो होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। सो दोस काइंड ऑफ इवेंट्स। ओके, बट एंड देन या वी स्टार्टेड विथ एक्सप्लोरिंग द एडिशन रूल। सो मोस्टली ये जो एडिशन रूल है, तो वी हैव द वेरी क्लियर रूल विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए union probability of B is equal to probability of A plus probability of B, which is here, which is given here. But I think, as I said, we shall have some more uh, understanding, like practical understanding of these things, even with the examples, daily example, like the examples which are very uh, well known to you. You know those things, and that's why like we will go with those examples only, so that everyone will be able to connect कि कैसे है क्या है। ओके, तो मोस्ट स्पेसिफिकली जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम एडिशन रूल उसको अप्लाई करते हैं। ओके, एंड दिस एडिशन रूल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी ए और बी क्या है? सो दीज आर द इवेंट्स। सो इवेंट्स उस ऐसे अगर कुछ इवेंट्स आते हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या, एक तो ये होगा या तो फिर वो होगा, दोनों एक साथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कल बोला था कि रोलिंग अ डाइस। ठीक है, तो रोलिंग अ डाइस में इफ दैट डाइस इज हैविंग सिक्स, लाइक 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर फेस वैल्यूज है, तो अगर उस रोल किए हुए डाइस का अगर 1 आता है, तो फिर 1 ही आएगा, उसके बाद 1 और 2 दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉसिंग अ कॉइन है, तो फिर एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और उसके लिए ये रूल है। ठीक है, उस रूल को थोड़ा एक एडिशनली एक एग्जांपल लेके उसको देखेंगे। उसके बाद वी हैव एक्सप्लोर द एडिशन रूल फॉर इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस केस में फिर डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम एडिशन रूल यूज करते हैं उस इवेंट्स को विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में एडिशन रूल हमने देखा, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये था। ठीक है, बट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये रूल है विच इज वेरी प्लेन एंड सिंपल, उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तब जाके सिर्फ आप यहाँ पे ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, और इसको कैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको देखेंगे, तो आपको ज्यादा एक स्ट्रांगली आपका उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं मतलब ये हो गए हमारे एडिशन रूल। ओके, तो दूसरा जो आता है वो मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल, व्हेन वी यूज द मल्टीप्लीकेशन रूल, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, हमने तो फिर म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली देखा, फिर इंडिपेंडेंट क्या है, राइट? तो इंडिपेंडेंट के बारे में गाइस, कैन यू रिलेट वन मोर एग्जांपल, बिकॉज वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम किस एग्जांपल के साथ इसमें रिलेट कर पाएंगे, एनी आइडिया आपको? क्योंकि म्यूचुअल देख लिया, नॉन म्यूचुअल देख लिया, ओके, और उसमें रूल्स भी देख लिए, एडिशन रूल। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम क्या ले पाएंगे कि भाई कि दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब यू कैन गिव मी वन सम एग्जांपल व्हेन वी कैन से कि दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। यस गाइस, बिकॉज देर इज सम डिफरेंस बिटवीन ये वाला पार्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसके मैंने अभी एग्जांपल्स आपको बताए। ठीक है ना? फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इनके बारे में किस कोई बता सकता है एग्जांपल, कोई भी एक जनरली अपना ऐसे ही समझो कि भाई कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल है, तो उसमें इंडिपेंडेंट क्या रहेगा फिर?
Yes, guys. यहाँ पे you can see this rule says when two events A and B are independent, the probability of the simultaneous occurrence of A and B simultaneous, also known as probability of intersection. See, probability of A intersection B, which is given over here. This formula. ठीक है ना? यस, एक सेकेंड ना, आई थिंक माई ये पीसी का वॉइस थोड़ा कम है शायद. इफ यू आर टॉकिंग ना, आई एम नॉट एबल टू हियर. आइदर हेड या टेल. बराबर, यस, दैट इज करेक्ट, आइदर हेड और टेल. बट इंडिपेंडेंट फिर उनको किस केस में बोलेंगे इंडिपेंडेंट? दोनों में से कोई भी एक रूल ही अप्लाई होगा, दोनों नहीं. या दैट इज करेक्ट. ओके. ओके. तो इसमें एक डिफरेंस ये है, डिफरेंस इन द सेंस कि द वे विच वी आर डीलिंग विथ इंडिपेंडेंट मतलब क्या. चलो, अगर फॉर एग्जांपल अपने इसका ही लेते, कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, ठीक है, कॉइन को मैंने एक बार टॉस किया, सो दैट इज आवर वन इवेंट. वी आर टॉसिंग कॉइन फर्स्ट टाइम, दैट इज आवर इवेंट. इवेंट का आउटपुट हमारा आया है विच इज कमिंग हेड. ठीक है. नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसी कॉइन को फिर से टॉस करूंगा, दैट इज अनदर इवेंट. ओके. तो ये जो जो इवेंट हो रहा है उसमें जो भी आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इस वाले पे उसका कुछ डिपेंडेंसी है नहीं. मतलब नो मैटर कि यहाँ पे हेड आए या टेल आए. ठीक है. नेक्स्ट फिर से वो ऑकरेंस जब आएगा तो इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं इस पे. इसका मतलब हेड आए या टेल आए, तो फिर यहाँ पे हेड आया तो नेक्स्ट इटरेशन में वो हेड ही आएगा, ऐसे हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ दिस. तो देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द अर्लियर इवेंट वॉट एवर इट हैपन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. ओके. हियर इन दिस केस इट विल कॉल इंडिपेंडेंट. तो भाई यहाँ पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है इन द नेक्स्ट ऑकरेंस. ठीक है. तो इसको इसलिए ध्यान में रखो बिकॉज वेन वी विल बी लुकिंग एट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो कार्डिनल प्रोबेबिलिटी, तो उस टाइम पे हम कंडीशंस पे जाएंगे, मतलब पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद इसका दूसरे वाले पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या. अगर हो रहा है तो फिर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको. ठीक है. जैसे कि मेरे पास एक 52 कार्ड्स का अपना जो ये जो पत्ते का जो रहता है ना 52 कार्ड्स. ओके. उसमें अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि, चलो मैं लेता हूं आ, क्या बोलूं, हाँ, मैं इसमें से एक्का को एस बोलते हैं शायद ना, एस एस एक्का. ठीक है. इंग्लिश में एस बोलते हैं उसको, और किंग बोलते हैं. ठीक है. तो ये दो इवेंट्स हो रही है. ठीक है. एक एक्का निकालने की और किंग निकालने की. जब भी मैं जब भी मैं वेनेवर आई विल बी, मैं यहां से अगर एस निकल रहा हूं कार्ड में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. अगर मैं कार्ड, दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड probability of withdrawing ace from the card of 52 and probability of withdrawing king from a card of 52. ठीक है. इन दोनों का एंड है यहाँ पे, एंड. ठीक है. वी आर नाउ लुकिंग एट द मल्टीप्लीकेशन रूल, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द एंड ऑपरेटर. ठीक है. एंड पहले जो हमने जो देखा उस पे, ठीक है, एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हेन वी आर सेइंग ऐसे, जैसे कि ए और अगर और बोलता हूं, या तो एक का आएगा या तो किंग आएगा, और हाँ, और तो यहाँ पे क्या है, या तो ए एक का आएगा या तो फिर किंग आएगा, उसकी वाली प्रोबेबिलिटी वो डिफरेंट रहेगी. एंड उस केस में हम एडिशन रूल यूज करेंगे, एडिशन. बट व्हेन आई एम टॉकिंग कि भाई ए एंड एस आना चाहिए एंड किंग आना चाहिए, तो दो दो बार इवेंट होगी. पहले फर्स्ट विल बी लाइक मैं ए निकल रहा हूं, एस निकल रहा हूं फ्रॉम फ्रॉम क्या, 52 कार्ड से, तो उसके एस का क्या होता है अपना 4 होता है, राइट, 4. Four. ठीक है. एंड मैं कितने कार्ड से निकल रहा हूं 52. ओके. तो ये आएगा 52. ठीक है. एंड तो एंड में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ, उसको बोलते हैं डायरेक्टली एड बाय 52 भी ले सकते हैं ना. 8/52. 52. नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा. 8/52 कब आएगा कि भाई जब हम जैसे कि एस जो है वो 52 में 8 बार ऑकर हो रहा है, बट वैसे नहीं ना. एस ये 4 ही बार आता है और किंग भी 4 ही बार आता है, तो दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हम. दोनों को एक साथ नहीं कर सकते. दिस इज वन इवेंट, एंड द अनदर इवेंट इज व्हाट, किंग को निकालना है 52 से, तो उस टाइम पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ठीक है. उस टाइम पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं.
ठीक है। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन विदाउट एंड विथ रिप्लेसमेंट, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। आई विल टेल यू कि भाई कैसे होता है। उस टाइम पे हम -2/50 करेंगे। तो 2/52 क्यों करेंगे, आई विल एक्सप्लेन। बट लाइक ऐसे अगर एंड वाला ऑपरेटर अगर अगर आता है, एंड वाला, तो यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। और वाला जब आएगा तो एडिशन करेंगे। ठीक है, इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट इन केस के जब आगे बढ़ेंगे हम कंडीशन, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मतलब ये कार्डिनल प्रोबेबिलिटी को जब टेबल में टेबुलर फॉर्मेट में आपको मैं पूछूंगा क्वेश्चंस, उस टाइम पे जब आप जवाब दोगे तो दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर दिस सिनेरियोज विच इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके ठीक है, एक काम करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के एग्जांपल्स लेके बताता हूँ। उससे उसके बाद जस्ट लेट मी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जैसे बताया, 1 सेकेंड ना। और उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट वाला जो है अपना इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट का यहाँ पे एक एग्जांपल है which is like the probability that and I think we have explored, हमने ये एग्जांपल देखा था कल कि that you will get grade। तो this two events इवेंट्स जो भी हो, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नो मैटर कि भाई इसमें अगर ये मेथड में इसको 80 मिलेंगे तो मतलब ये क्वांटिटेटिव मेथड में इसको 80 मिले, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको जो दूसरा है मार्केटिंग में भी उसको ज्यादा ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट जब होते हैं तब वी आर प्लेन एंड सिंपल उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एग्जांपल लेके, फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो फिर मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बताऊंगा। एंड इट विल, आई होप कि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस टाइम पे हम किसको किस में ज्यादा उसको वेटेज देते हैं एग्जांपल के टाइम पे, और उसको जैसे कि एडिशन रूल कब यूज करना और मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करना। 1 सेकेंड। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला एडिशन रूल। ठीक है, तो एडिशन रूल इज वेरी सिंपल एंड प्लेन एंड सिंपल है एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल क्या है अपना? एडिशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और ये थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब ऐसा यही एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स वाला जो टप्पा है ना, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वी आर लाइक मूविंग और दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग। तो इतना कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि यस, एटलीस्ट यू शुड हैव दिस आइडियोलॉजी, ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए क्या होता है एडिशन रूल वगैरह। बाद में जब प्रैक्टिकली जब आगे बढ़ेंगे तो दिस इज जस्ट अ कंसेप्चुअल थिंग एंड द theoretical थिंग which will come under like while you will be brainstorming the session of problem solving, discussing with your teams regarding any kind of scenarios और conditions basis पे जब आप डिस्कस करोगे उस टाइम पे इसका ये भी होगा, मतलब जिक्र होगा। अदरवाइज ये मशीन लर्निंग में एक पार्ट है जिसको अगर मतलब ये अच्छे से आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड हुआ तो दैट विल बी गुड फॉर सॉल्विंग some critical issues and problems with the machine learning। but अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यस दैट इज व्हाट, एंड दिस इज वेरी प्लेन एंड सिंपल गाइस। देयर इज ऐसा कंफ्यूजन वाला चीज कुछ भी नहीं है। जस्ट एक थोड़ा सा ध्यान दो कि एडिशन रूल, जब हम एडिशन रूल देखेंगे तो एक दो चीजें, एक तो किस पे देखेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे, और उसके बाद नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट पे, नॉन। ठीक है, एक म्यूचुअल और एक नॉन म्यूचुअल। तो म्यूचुअल क्या होता है और नॉन म्यूचुअल क्या होता है? पहले तो म्यूचुअल क्या होता है कि इवेंट्स कैन नॉट ऑकर टुगेदर, एक एक साथ दो इवेंट नहीं आएंगे, उसको बोलेंगे हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और जो हमने कल एक्सप्लोर भी किया था, मतलब क्या कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड हेड आ रहा है, तो हेड अगर आता है तो ऑब्वियसली टेल नहीं आएगा, उस टाइम पे एक ही कुछ तो आएगा। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उसमें एडिशन रूल क्या बोलता है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये अपना एक सिंपल प्लेन एंड सिंपल रूल है एडिशन का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के केस में। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के केस में। एग्जांपल तो एकदम प्लेन एंड सिंपल है, वही वाला कि इफ आई एम टॉसिंग टॉसिंग अ कॉइन, हाँ, हेड और टेल, तो उस केस में एकदम क्लीन एंड सिंपल है। तो आपको क्या करना है? 1/2 हेड आएगा, हाँ, प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल विल बी 1/2। ठीक है,
सो दिस इज वन वन थिंग विथ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। एक आपको ज्यादा क्लियरेंस इसमें आएगा नॉन म्यूचुअल जब मैं लूंगा। एक सेकेंड, नॉन म्यूचुअल के केस में अ, अगर मैं ठीक है, ठीक है, एक एक ओके, किंग, ठीक है। यस्टरडे भी हमने इस पे ज्यादा फोकस किया था, एक किंग वाला था, किंग। तो हमको पता है 52 के कार्ड के इसमें 4 किंग होते हैं, ओके। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट, हार्ट वाला कार्ड, ठीक है, हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो हार्ट के केस में 52 में अपने पास 13 हार्ट्स के कार्ड होते हैं, ऑलराइट। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में एडिशन के रूल की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड विच इज एस, एस और किंग, एस और किंग, ठीक है। किंग 4 है तो एस भी ऐसे ही होते हैं, एस भी 4 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। बट इन दिस केस आई एम, हेलो, हाँ हाँ, ओके। सो अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड एस और किंग, एस और किंग विच इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या, ये कैन ऑकर टुगेदर, ठीक है। कैन ऑकर टुगेदर मतलब क्या, एक तो जो भी मैं निकाल रहा हूं वो एस हो सकता है या तो किंग हो सकता है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो उस केस में आप अपना एडिशन रूल क्या बोलेगा, एडिशन रूल क्या बोलेगा कि भाई एस निकालने की प्रोबेबिलिटी व्हाट इज इट, 4/52, राइट। वी नो इट, एस, एस वाली प्रोबेबिलिटी है बिकॉज वी हैव 4 एस, एस यहाँ पे एस, हाँ, वी हैव 4 एस इन अ डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, वी नो 4 एस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस और किंग, या तो एक का आएगा या तो किंग आएगा, उसकी हम कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एडिशन रूल देख रहे हैं फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज दिस इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। सो वेरी क्लियर कि एस के लिए क्या लेंगे हम प्रोबेबिलिटी 4/52, यस करेक्ट। प्लस किंग के लिए क्या लेंगे, किंग के लिए लेंगे 4/52, ठीक है। नाउ द थिंग इज एज दिस कैन ऑकर टुगेदर, ओके, दिस कैन ऑकर टुगेदर। सो इन टर्म्स ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के टाइम में वी आर एडिंग इट एंड दिस इज प्लेन एंड सिंपल एडिशन है इसका 8/52, ठीक है, 8/52। आई थिंक अमूल आपने कुछ तो 8/52 के बारे में यही पे बोला था क्या, इसी इसी सिनेरियो पे बोला था आपने 8/52, या इट वॉज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के टाइम। मल्टीप्लीकेशन टाइम, यस, इट दिस टाइम इट विल नॉट बी मल्टीप्लीकेशन, ओके, दिस टाइम इट विल बी द एडिशन ऑफ इट। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेट मी थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा वाला, बिकॉज ये क्या है ना, ये एक्चुअली व्हाट आई एम डिस्कसिंग एंड व्हाट आई एम टॉकिंग, देर आर टू थिंग्स एंड दोज आर जस्ट एक एक दूसरे में ये कंबाइन हो गए। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द एडिशन रूल फॉर श्योर, दिस इज एडिशन रूल, ओके, दिस इज एडिशन रूल। बट दिस एडिशन रूल इज एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इसलिए कि भाई जो भी कार्ड निकाल रहे हैं, या तो एक का आएगा या तो किंग आएगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि भाई एक का भी आया और किंग भी आया। तो दैट इज व्हाट व्हाई दिस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, इवेंट कैन नॉट ऑकर टुगेदर, या तो एक एस आएगा या तो किंग आएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्लेन एंड सिंपल एडिशन रूल। ये जो दूसरा अभी मैं बताऊंगा आपको, दूसरा वाला, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। I am talking about the example. This example is of non-mutual exclusive event and how it is non-mutual exclusive, and we are how we can use the addition rule. तो मैं अभी और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि चलो क्वीन निकालते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड का कलर मेरे को एडिशन में लेना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका नॉन म्यूचुअल वाला एक एग्जांपल पता चलेगा। और मैं अगर बोलता हूँ इसको ब्लैक, ब्लैक, तो भाई ब्लैक में क्या होता है ना, ब्लैक में दो होते हैं स्पेड, आपको पता है वो स्पेड एक होता है और एक होता है किलावर वाला, वो होता है ना किलावर वाला ब्लैक, ठीक है। चलो ब्लैक के तो ठीक है, किलावर और स्पेड वाला छोड़ो। आपको ये पता है कि भाई 52 में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में आप ये देखो, दिस इज नॉन म्यूचुअली बिकॉज ऑफ गेटिंग क्वीन,
क्वीन हमें क्वीन कैसे मिलेगी? क्वीन जो मिलेगी वो ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। और दो दो चांसेस है कि भाई वो इस ब्लैक में से दो दो है, एक तो स्पेड की हो सकती है, या तो फिर ये जो है किलावर वाला उसको जो बोलते हैं आप, उसको जो भी वर्डिंग है उसका ना, उसका, ठीक है। तो ब्लैक में दो आएगी। तो इन दिस केस ना व्हाट वी डू, क्वीन आने के क्या चांसेस है अपने? आउट ऑफ 52 क्वीन आने के चांसेस फॉर श्योर वी हैव ये वाली 52, ठीक है। 4 आउट ऑफ 52 क्वीन आने के चांसेस, हाँ, नो मैटर ये ब्लैक है या रेड है, ओके। बट वहां पे स्पेसिफिकली बता है कि ब्लैक में से क्वीन आनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट। एंड ब्लैक में से क्वीन मतलब क्या? ब्लैक आने के कितने चांसेस है? ब्लैक टोटल कितने होते हैं? 26 ऑफ 26। 52, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, सो whatever the card which we are just withdrawing, that card should be a black कार्ड। ये आने की प्रोबेबिलिटी है 26/52 फॉर श्योर। ट्विन 4 रहते हैं और वो ब्लैक है वो 26 कार्ड 26 रहते हैं। रहते हैं, यस यस यस। एंड और वो 26 में से क्वीन दो भी हो सकते हैं। yes, and that's why for this non mutual exclusive event we do this part, ये वाला पार्ट करते हैं, माइनस करते हैं इसमें, ओके। ठीक है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया और यहाँ पे हमने माइनस किया, बिकॉज दिस एग्जाम्पल वॉज फ्रॉम द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम द नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एडिशन रूल इस तरह क्या पहले इसमें आपने जो इम्पैक्ट करता बताया है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का था। अभी ये यस, जो एंड बता दिस रहे इज हो वो नॉट नॉन नॉन म्यूचुअल म्यूचुअल है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, the probability of withdrawing a card, that card can be queen or can be a black card. So this is the probability of can be queen, this is the probability of can be black, okay। फिर मैंने माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि बिकॉज, ब्लैक। करेक्ट, यस, बिकॉज क्वीन, इसमें भी क्वीन हो सकती है और इसमें भी क्वीन हो सकती है। इसमें क्वीन कैसी? वो जो हमने ब्लैक वाली जो देखी ना, ब्लैक वाली एक ये वो स्पेड वाली 26 और ब्लैक किलर में वाली, से दो ब्लैक हो सकते यस। और इसमें भी दो ब्लैक में भी वही वाला क्वीन का सीन कंसिडर किया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग दिस 2/52। तो दिस इज वन थिंग, ओके, ठीक है। एक काम करूंगा मैं, जो अभी अपना एक मार्जिनल टेबल जो आने वाला है ना, उसमें आई एम श्योर कि आप उसको रिलेट कर पाओगे। अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो इट्स ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जितना भी एक थोड़ा बहुत समझा होगा इट्स ओके। उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट वाले जो हम आगे जाके जो टेबल वाले एग्जांपल्स लेंगे उसमें थोड़ा एडिशनल बताऊंगा और पूछूंगा आपको। आई होप कि आप उस पर आंसर दे पाओ, नहीं भी दिए तो एक्सप्लेन म्यूचुअली। करेंगे। अभी इसमें Yes. प्लस का नहीं है म्यूचुअली में। हाँ, यस यस, हम, म्यूचुअली में ये और का एग्जांपल है, हाँ, म्यूचुअली और और नॉन म्यूचुअली में। यस तो ये यस, हाँ प्लस का एग्जांपल। हाँ, दिस इज एडिशन रूल, एक्चुअली दिस इज एडिशन रूल, दिस इज एडिशन रूल। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल। चलो मल्टीप्लीकेशन रूल को मैं बताता हूँ, एंड देन आई विल गो टू द दैट कार्डिनल वाला टेबल ना, उसपे आई होप के आपको बहुत सारी आइडिया क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है तो इट्स ओके, डोंट वरी। आप इसको रिपीट रिपीट देखना इसी रिकॉर्डिंग को। मुझे पता है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आई नो इट, बिकॉज यही एक है, थोड़ा सा डाउट वाला और कंफ्यूजन वाला चीज होता ही है। बट इट्स ओके, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बार बार रिपीट करना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज, ये जो चार चीजें वो ध्यान में रखना। पहली तो एडिशन रूल इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एंड द सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन रूल इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट, हाँ, एंड डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। उसको एग्जांपल फिर से एक यहाँ पे लेते हैं, सेम सेम चीज का लेते हैं एग्जांपल, ओके। अगर एक सेकेंड, पहले तो ये समझो कि डिपेंडेंट क्या होता है। अगर किसी किसी एक इवेंट के ऑकर होने से, किसी एक इवेंट के ऑकर होने से दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी में चेंज आ जाता है, किसी एक इवेंट के ऑकर होने से दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी में चेंज आ जाता है, तो उसे डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? अगर किसी एक इवेंट का ऑकर होता है तो उसके वजह से
देर इज समथिंग विच इज चेंजिंग ऑन द अनदर इवेंट, तो उसे डिपेंडेंट बोलते हैं। फिर नॉन डिपेंडेंट आप उसको ट्रांसलेट कर देना मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। और उसका जो रूल है दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A, okay, probability of A into, or we can say multiply into probability of B, B given A। given A मतलब कि भाई जो भी जो भी ए की कंडीशन दी है वो कंडीशन होने के बाद बी में क्या चेंज आता है, ठीक है। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल, वी हैव सीन द एडिशन रूल अबव, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। तो नॉन डिपेंडेंट मतलब ही इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट के बारे में तो हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट के बारे में फिर अभी उसको अलग मतलब उसके अपोजिट ऐसे देखो कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, हम जब भी टॉइस कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हेड है या टेल है, ठीक है, फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो फिर सेकंड टाइम पे जो भी होगा हेड आएगा या टेल आएगा वो डिपेंड नहीं है पहले पहले क्या आया, ठीक है। तो नो मैटर कि फर्स्ट टाइम पे हेड आया और टेल आया, जब दूसरे टाइम पे वही जो इवेंट होगा उसमें इसका जो भी आउटपुट आया उससे इस आउटपुट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन। बट इसमें अगर ऐसा होता है कि भाई मैं बोलता हूं कि मैंने किसी कार्ड में से मैंने एस निकाला, ठीक है। और एक काम करता हूं मैं, कार्ड का एग्जांपल छोड़ के अभी मैं एक टब है, टब में अपन बॉल रखते हैं, बॉल, ठीक है, तो इसमें ज्यादा जल्दी समझ जाएगा। देखो ये ग्रीन कलर के बॉल है और ये ब्लू कलर के बॉल है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग एंड यू विल, आप इमेजिन कर पाओगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताइए आप टोटल बॉल कितने हैं अभी, टोटल बॉल्स, एक दो 7 चार 7 7 है क्या, नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, ठीक है, आठ है, टोटल बॉल्स है अपने पास आठ। हाँ हाँ, उसमें ग्रीन बॉल कितने हैं, ग्रीन ग्रीन है तीन, 3 ठीक है, और ब्लू है टोटल पांच, ठीक है। देखो ब्लू बॉल पांच है और ग्रीन बॉल तीन है। अगर मैं बोलता हूं कि इस टब में से मैं रैंडम एक बॉल उठा रहा हूं, रैंडमली मैं एक बॉल उठा रहा हूं, तो फिर उसमें आप क्या बोलोगे, रैंडमली मैं एक बॉल उठा रहा हूं, नो मैटर वो ग्रीन है या ब्लू है, तो रैंडम के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी अपनी, 1/8 आएगी, 8 बराबर। मैं रैंडमली कोई भी एक बॉल उठा रहा हूं तो उसका जो भी निकल रहा हूं तो उसका जो भी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ आई एम पिकिंग अ बॉल विच इज ऑफ ग्रीन कलर, यस 3 गाइस। by 3 by 8 हाँ यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना गाइस। 3/8 ब्लू कलर का बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 3/8, राइट। वाई 3? बिकॉज हियर आई एम क्लियरली टॉकिंग अबाउट द ग्रीन बॉल, मैं ग्रीन बॉल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दैट्स वाई इट इज 3/8, ठीक है। नाउ अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछूंगा तो ठीक है, आप ग्रीन के बारे में रिलेट कर लिया आपने, मैं ब्लू के बारे में अगर बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉ लाइक टेक लाइक पुलिंग अ बॉल विच इज ऑफ ब्लू कलर, तो आप बोल दोगे, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि मैंने इस टब में से एक बॉल निकाला, ठीक है, एक बॉल निकाला, वो ग्रीन है और उसको मैंने बाजू में रख दिया, वन इवेंट, ठीक है, मैंने रिप्लेस नहीं मारा, मैंने उसको रिप्लेस नहीं मारा, मतलब क्या, निकाला फिर से तो एक बॉल निकाल लिया उसको साइड में ले लिया, ठीक है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग अ बॉल विच इज अ ब्लू कलर, ब्लू कलर, तो क्या आएगा इस केस में, मैं ब्लू 5 by कलर, 7 हाँ 5 by यस 7 करेक्ट, 5/7 आएगा, वाई, बिकॉज बिकॉज ये जो इवेंट किया ना मैंने उठा के साइड में रखने का, उससे क्या हो गया, ये बॉल की ये कम हो गई ना, एक टोटल 8 बॉल थी, एक तो निकल गया यहां से,
तो हम उस हाँ केस में पूरा बाय 8 नहीं करेंगे, बिकॉज वन हैज ऑलरेडी विदड्रॉन. वी आर नॉट रिप्लेसिंग दैट. वी आर नॉट रिप्लेसिंग वॉट एवर इट इज ग्रीन और ब्लू जो भी हमने निकाला, हम वापस से रिप्लेस नहीं मार रहे. इसलिए इसलिए उसका इम्पैक्ट पड़ा है वो नेक्स्ट इवेंट पे. तो इम्पैक्ट पड़ा है उस नेक्स्ट इवेंट पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट. ये बॉल का केस हो गया. अ, अ, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस एस एंड किंग, एस एंड किंग की अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, एंड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड बोल रहा हूं, नॉट और. तो हमेशा जब एंड आएगा, मतलब एक रूल है गाइस, ठीक है, एंड का मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसी इसी इसमें मैं और का भी बता दे रहा हूँ. यू आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप इसको बार बार रिपीट कर लेना, जस्ट अगर आपको और डीप में जाना है, अदरवाइज इट्स ओके. जब भी ऐसी चीज होगी ए यूनियन बी, जब भी ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आइदर ए और बी, ठीक है, जब भी ये चीजें होंगी ना, आपको समझ जाना है कि दिस वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन रूल. मैं एडिशन रूल की बात कर रहा हूं. और जब भी अगर मतलब आपको जहां पे भी आगे जाएंगे प्रॉब्लम्स में आएंगे, जब भी ऐसी बात होगी ए एंड बी, हाँ, ए एंड बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसा आएगा ए बी, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोल दिया हमने, ए एंड बी, ए बी इंटू ई बी. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे स्पेसिफिकली एंड बी. जब भी ऐसी चीज बोलेंगे ना, तो आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल. हम मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगर मैं ऐसे बोलता हूँ भाई एच हेड एंड टेल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका होगा 1/2 एंड मल्टीप्लाई 1/2. मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, एंड टेल की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो इसका आएगा आंसर 1/4, बिकॉज वी आर डूइंग अ मल्टीप्लीकेशन. अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड किंग, एस एंड किंग, तो एस तो वी नो इट बेटर, एस इज नथिंग बट 52, 4/52, एंड मल्टीप्लीकेशन किंग क्या है, 4/2, 4/52, सॉरी, 4/52. ओके. सो इन दिस केस इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, आ, हाँ, यहाँ पे एक गलती ये हो गई. वेन आई एम यूजिंग एंड, तो जब भी मैं एस एस यहां से निकाल ले रहा हूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाली मैं बात कर रहा हूँ. इफ विदाउट रिप्लेसमेंट अगर है, जैसे हमने बॉल के बारे में देखा, विदाउट रिप्लेसमेंट के चीज में मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर एस एस निकाल रहा हूं, तो ठीक है, 4/52 तो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4/52 नहीं रहेगा फिर. अगर इफ आई एम जस्ट पुलिंग आउट द एस फ्रॉम दिस द डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, इट विल बी ऐसा हो जाएगा. इफ दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे बल्ब वगैरह होते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फॉल्टी बल्ब, फिर उसके बाद वो उसको फिर से रख दिया उस बकेट में, और उसके बाद उसको नहीं निकाल के निकाल लिया साइड में, तो टोटल नंबर में से एक माइनस करते हैं अगर एक निकाला है तो. वो वाला ये ज्यादा डीप में हो रहा है, आई नो, बट जस्ट एक ओवरऑल एक आइडिया उसको लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन रूल में जब एंड बोलेंगे, तो एंड में ये जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/52, एंड वेन विद अ रिप्लेस दिस विदाउट अ रिप्लेसमेंट, मतलब हम निकाल के फिर से उसमें ऐड नहीं कर रहे उस टोटल में, तो इन दैट केस इट विल बी 51. ठीक है, 51 रहेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेना. विथ रिप्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूं, तो इट विल नॉट बी अ 51, इट विल बी अ 52. whenever I am saying with or without replacement, I am talking about the total population, जो भी अपनी टोटल पॉपुलेशन है. विदाउट रिप्लेसमेंट बोलूंगा तो एक माइनस निकाल लेना जो भी आप निकाल रहे हो उससे, एंड विथ रिप्लेसमेंट बोलूंगा तो इट विल बी सेम. ठीक है. आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आई एम श्योर कि जैसे आगे बढ़ेंगे आपका थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा जब हम इस वाले एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. एंड लेट्स गो विद दिस एग्जांपल. ठीक है. मुझे पता है गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वहां पे, थोड़ा सा आपको वहां पे थोड़ा सा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आएगा, तो उसके लिए इस एग्जांपल पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए. यू विल गेट सम आइडिया, सम लिटिल बिट आइडिया. हाँ, मैं यहाँ पे आपके सामने आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. अ सर्वे इन्वॉल्विंग 200 फैमिलीज वाज कंडक्टेड. ठीक है, ये एक सर्वे का एक रिजल्ट है, जहां पे 200 फैमिलीज पे हमने सर्वे लिया था. ठीक है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फैमिली
इनकम पर ईयर, ठीक है, वेदर द फैमिली बाइज अ कार गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, यहां पे देखो आपको टेबल दिख रहा है, एक है बायर ऑफ अ कार एंड वन, एक ग्रुप है नॉन बायर ऑफ अ कार, जिसका इनकम बिलो ऑफ ₹10 लाख है, उनकी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 80, 38 एंड 82, टोटल नंबर उनकी होते हैं 120, ठीक है। एंड द इन दोज फैमिलीज हुज इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख who are buyer of a car, those are 42, and non buyer of a car, those are 38, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल कॉलम का टोटल, यहाँ पे इनका टोटल है 80, एंड बायर ऑफ अ कार, तो टोटल बायर ऑफ अ कार कितने हैं अपने पास, 80 है, इंक्लूडिंग जिनका इनकम 10 लाख से कम है और जिनका इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख है, उनका टोटल बायर ऑफ अ कार भी है 80। नॉन बायर ऑफ अ कार कितने हैं, 120 है अपने पास, ठीक है। इसको इसको ठीक से समझो, आपको फिर जो पहले हुआ है उसमें थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि ओके, दिस इज द एग्जांपल एंड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। टोटल इनकी कितनी है, 200 फॉर श्योर, बिकॉज द सर्वे हैज हैपन ऑन द 200 फैमिलीज। तो इसमें अभी ठीक से मुझे यहां पे देख के आप आंसर देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली इज बायर ऑफ द कार। आई एम टॉकिंग अबाउट द बायर ऑफ अ कार, रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो बायर ऑफ अ कार है। यस गाइस, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली इज बायर ऑफ द कार। क्या आंसर हो सकता है इसका, रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली इज बायर ऑफ द कार, बायर ऑफ द कार। यस गाइस, 80। ठीक है, 80, दैट इज करेक्ट। जो भी फैमिली है वो बायर ऑफ अ कार है, वो है 80। और पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो भी रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली है वो बायर ऑफ अ कार है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 38 और 42 को प्लस करेंगे। आ, हाँ, ये 38 प्लस 42 को प्लस करके जो आया वो 80 है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बायर ऑफ अ कार, राइट, बायर ऑफ अ कार। तो हमने बायर वन ऑफ बाय अ कार निकाल रहे वन हैं, बाय 80। टोटल वन टोटल वन कितने बाय हैं अपने 80। पास, टोटल कितने हैं 80। अपने पास, टोटल है अपने पास 200। 200 है अपने पास टोटल, राइट, हाँ, राइट। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायर ऑफ अ कार, सो वी आर जस्ट 80/200। 80/200। 80/200, out of 200 we are picking na, out of 200 we are picking this family, and which family we are discussing about, we are discussing about those family who are buyer of a car, and that's why we have considered 80, right, that's why we have considered 80, एंड आउट ऑफ कितने, जो भी टोटल फैमिलीज है अपने पास विच आर 200, तो इसका आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज 80/200। तो इसको आप कैलकुलेट करके 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 2/5, इसका जो आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट कर, 5 4 20, ठीक है, 0.4, ठीक है। इसका बताइए मुझे आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली इज बोथ, क्या, बायर ऑफ अ कार एंड बिलोंगिंग टू इनकम ऑफ ₹10 lakhs एंड अबोव, इनकम ऑफ ₹10 lakhs ऑफ अबोव, ठीक है। एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि भाई बोथ बायर ऑफ अ कार, बोथ मतलब क्या, ऐसे नहीं बायर और नॉन बायर नहीं बोल रहे हो, एक है बायर ऑफ अ कार, एक कंडीशन हो गई, और दूसरी हो गई कि उनका इनकम 10 42 लाख बाय से 80। ऊपर होगा, तो 42 ये बाय 80। क्लियरली हमको ये मिल गया 42, ओके, 42, 42/80। 42/80, 42/80, राइट, यस। ओके। नेक्स्ट अगर मैं पूछूंगा आपको, इसी में आपको अगर मैं पूछता हूं, गिवन दैट भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि गिवन दैट अ फैमिली हैज इनकम ऑफ ₹10 lakhs एंड अबो, ठीक है, इनकम ऑफ ₹10 lakhs एंड अबो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द family buys a car, what is the probability that a family buys a car? 42/80। Yes, correct, 42/80 guys, huh? Because
गिवन दैट, ये गिवन दैट वो वेरी इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट मतलब क्या, एक कंडीशन बता रहे हैं हम, एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पे वी आर कैलकुलेटिंग दिस। एंड द कंडीशन क्या थी कि उस फैमिली का इनकम जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 10 lakhs होना चाहिए। ओके, एंड वो फैमिली ने कार क्या है, बाय बाय करने की कंडीशन, नॉन बायर का कुछ पूछा ही नहीं था, इसलिए बाय करने की कंडीशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। कौन सी, ये 38 भी थी और 42, बट गिवन दैट में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, कि इनकम ऑफ रुपीज कितना, 10 lakh एंड अबव। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस। एंड वी नो कि बायर ऑफ अ कार टोटल कितने हो, बायर ऑफ अ कार 2080 एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग इट विथ along with 200, along with 200। so that is the important thing। चलो वन मोर एग्जांपल, ठीक है, आप फिर से सुनिएगा। गिवन दैट a family is non-buyer, a family is non-buyer, huh? What is the probability कि its income is less than 10 lakh? क्या है, नॉन बायर है, और वो नॉन बायर है, वो फैमिली जो भी है वो नॉन बायर है, ठीक है, एंड इट्स इनकम इज लेस देन 10 लाख। नॉन बायर है, इनकम इज लेस देन 10 लाख, मतलब क्या आ गया, ये आ गया, बराबर। वी विल नॉट कंसिडर दिस वन बिकॉज देर आर टू कंडीशंस, नॉन बायर एंड इनकम इज लेस देन 10 lakhs, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला आ गया। ओके, ओके, एंड वी आर कंसिडरिंग द probability, we are calculating about the probability, तो 82 डिवाइड बाय 120 वी विल पिक, 82 डिवाइड बाय 120 वी विल पिक, ठीक है, ये 120 और ये 120 यू कैन सी, बट प्लीज फोकस ऑन दिस वाला कंडीशंस, ये और ये जो भी स्टेटमेंट में जो भी आएगा उसके उसके अकॉर्डिंग आप सोचने ये ट्राई कीजिए कि व्हाट हम किस वे से जा रहे हैं, ठीक है। एक एडिशनल लूंगा एंड देन वी विल कंक्लूड ऑन दिस व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। वन मोर, हाँ, इसको ध्यान से सुनिएगा अभी। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly selected family, randomly selected family either buys a car, हाँ, और बोल रहा हूं मैं, और either buys a car or income is greater than or equal to 10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs मतलब क्या, और बोल रहा हूं, और में हम वी आर यूजिंग द एडिशन रूल गाइस, वी आर यूजिंग द एडिशन रूल, बराबर है ना। और में जैसे मैंने लास्ट अभी स्लाइड पे क्या एक्सप्लेन किया, व्हेनेवर और आएगा तो हमारा एडिशन रूल एक्टिवेट होता है, एंड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन रूल एक्टिवेट होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए आई एम टॉकिंग। और उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको पता है, और गेट, उसके बाद एंड गेट, तो उसको कैसे डील करते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो फॉर श्योर यहाँ पे तो एडिशन रूल आ गया, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन रूल एंड व्हाट आई हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली आइदर बाइज कार और हैज इनकम ऑफ रुपीज 10 लाख और लाइक 10 लाख और अबो, ठीक है। मैं दो दो कंडीशन बता रहा हूं, तो दीज आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे पे दोज आर नॉट डिपेंडेंट। एक तो ये बायर ऑफ अ कार हो सकता है, या एक तो इसमें वो एक दूसरे में कोई डिपेंडेंसी नहीं उनकी, ठीक है। देन वी हैव क्लियरली स्टेटेड आवर रूल क्या बोलता है, अपना एडिशन रूल बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। नॉन म्यूचुअली है, क्या है, नॉन म्यूचुअली, तो नॉन म्यूचुअली के केस में मैंने क्या बोला था, आप उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, बिकॉज वो इधर भी है और उधर भी है, तो वो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडिशन रूल। एडिशन मतलब क्या, जब भी और आएगा और जब भी ऐसे यूनियन आएगा, ये यूनियन आएगा, तो यू हैव टू सी कि भाई दिस इज एडिशन रूल। मुझे पता है आपके दिमाग में मतलब कुछ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आते होंगे, बट गाइस डोंट वरी, एज आई सेड ना कि ये बहुत डीप में है, और बिकॉज दिस इज द पार्ट
मे बी आपको जब हम आगे बढ़ेंगे किसी एल्गोरिदम में अगर एंड इफ एल्स ये एंड कंडीशन आएगी, तब जाके आपको ये थोड़ा थोड़ा सा बहुत फ्लेवर आएगा। बट डोंट वरी, बिकॉज आपके माइंड को मैं थोड़ा थोड़ा एक नहीं क्या उस वे से बिल्डअप करके लेके जा रहा हूँ, तो जिस वे से आपको आगे जाके वो ये मशीन लर्निंग का एडॉप्ट हो सके। तो डोंट वरी कि आपका 100% यहाँ पे आपका मतलब ये कंसिडरेशन हो या कुछ भी हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो या डाउट वाला पार्ट हो, या ऐसे नहीं कि 100% ही आपको यहाँ से सब समझो। इट्स ओके, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आप ट्राई कर रहे हो ना रिलेट करने का, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम श्योर कि आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा कि अगर आपने इसको एकदम 100% नहीं अचीव कर पाए, ये समझ नहीं पाए, तो इतना भी उसमें डिपेंडेंसी नहीं है आगे की चीजों का, इसलिए उसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप, एकदम हैप्पी रहिए। मैंने बोला ना, हैप्पी इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर ये टफ जा रहा है तो ऐसा नहीं कि टेंशन लेके डिसमूड होना है, हैप्पी रहो। ये थोड़ा सा एक टफ पार्ट है, इसको हम पार करके निकल जाएंगे आगे, तब जाके आगे आप रिलेट कर पाओगे कि कुछ कुछ चीजों को। एंड आई विल रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। इफ यू आर मिसिंग समथिंग हियर, आपको कितना भी कोशिश करके थोड़ा सा उसको दिक्कत ही जा रहा है, तो इट्स ओके, जस्ट फ्लो में टिके रहिए और बने रहिए। आगे जाके आपको ये सब जो भी एक थॉट है, अगर बहुत डिफिकल्टी जा रही है, वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, एक मैंने जो बताया, क्या बोला मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन रूल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडिशन रूल में ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज द इवेंट्स। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली आइदर बाइज अ कार, बायर ऑफ अ कार। हाँ, तो फिर इसके बारे में तो सोचना ही बंद कर दीजिए। आइदर बाइज अ कार, ठीक है, और हैज इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 lakhs। ठीक है गाइस, तो चलो ए से थोड़ा थोड़ा इसको सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, ए मतलब क्या रहेगा आपका, बाइज अ कार। तो बाइज अ कार क्या है गाइस, ठीक है, 80। बाइज कार की हमने क्या देखी थी, जो भी बायर है कार के, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बायर तो टोटल 80। अपने पास ये है, उस केस में 80। हमको ये देखना ही नहीं है कि उसका इनकम क्या है, डोंट वरी अबाउट द इनकम। बायर ऑफ अ कार वी नो, बायर ऑफ अ कार कितने, 80। ठीक है, 80। हाँ, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बायर ऑफ अ कार होने की, 80 डिवाइड बाय 80/200। 200, दैट इज फॉर श्योर। तो ए इवेंट तो अपना यहाँ पे खत्म हो गया, एक ही चीज, ए वाली जो भी चीज है वो खत्म हो गई। दूसरा क्या है अपना, दूसरा वाला जो बी इवेंट है ना, उसको ठीक से देखना। बी इवेंट क्या बोल रहा है, फिर उसको क्या है, बाद में फिर फॉर्मूला डाल दो, ये प्रोबेबिलिटी, हाँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वी आर डिस्कसिंग, और फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए के बारे में तो अपने को ये आंसर आ गया, 80/200 आ गया एकदम फॉर श्योर। बी के बारे में बात करते हैं अभी। तो बी क्या बताया हमने, उनका जो इनकम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 lakhs है, मतलब ये वाली चीज। ठीक है, एंड उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी उसमें, यस गाइस, जिसका इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू, 80। यस यस, वेरी 80 गुड, आएगा। यस यस यस, 80/80 बाय 80 बाय, यस करेक्ट, 80/200, दैट इज करेक्ट, 80/200, राइट। Probability of A is 80/200. Probability of B is बी भी एक्चुअली 80 होएगा ना, क्योंकि उसका हम लोग 42/38, 42 प्लस 38 करेंगे ना उसको। यस करेक्ट करेक्ट, वो भी 80 होगा, जो नीचे टोटल वाले में 80 लिखा है ना, वो वाला रहेगा ना 80 उसका। तो यस, सेम नंबर कंफ्यूजन दे रहा है उधर। ओके। तो लेट्स कम ऑन द, देयर आर टू फॉर्मूलाज, ओके, वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला हम देख रहे हैं, ठीक है, एंड द सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए इंटरसेक्शन बी एज वेल ना, इन दिस फॉर्मूला our total formula is probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and for that reason probability of A intersection B जो है which is 42 divided by 200, 42। तो ये 42 डिवाइड बाय 200 इंटरसेक्शन में क्यों है, बिकॉज इट इज कमिंग कॉमनली, कॉमनली आ रहा है, कैसे, बायर ऑफ अ कार
एंड ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसका इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख है, ठीक है, वो कॉमन में आ रहा है, बिकॉज वी नो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई अपनी 80/200, राइट, 80/200, 80/200, and probability of B I 80/200, right, same way which you have calculated for probability of A. तो second वाली भी आई probability of 80/200, right, but we have to subtract the probability of A intersection B, which is nothing but probability of this, क्या जो कॉमन है वो क्या है 42/200। तो इसमें अगर आप एक वैल्यूज डालोगे तो आपको ये कैलकुलेशन मिलेगा 80/200, 80/200 प्लस 80/200, ठीक है, 200 माइनस ए इंटरसेक्शन है अपना, यहाँ पे आई होप कि आपको दिख रहा है 42/200, और इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 80 + 80 160 - 42, 160 - 42 is nothing but 118, right, 160 - 42 is 118, एंड नीचे क्या आएगा फिर अपना डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमिनेटर की एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो वो सब हो जाता है, और डिनोमिनेटर है वैसे ही रहता है, तो डिनोमिनेटर अपना है वैसे ही है 200, एंड देन इफ यू कैलकुलेट दिस 118/200 गाइस, कैलकुलेशन में अगर कोई बताएगा इसका फाइनल वैल्यू क्या आता है 180/200, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो 1111, ये तो जीरो आएगा, 1 1 ये 2 59 आ रहा है। 0.59, ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगी, ये 0.59 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो पूछी थी कि रैंडमली सिलेक्टेड था, रैंडम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, randomly selected family either buys a car or has a income greater than or equal to 10 lakhs, or both, ठीक है, and for that reason we have calculated this complete addition, and then whatever the terminology, because यहाँ पे income greater than or equal to 10 lakhs लिखा था, इसलिए हमको ये कॉमन में मिला, 42 कॉमन में मिला। अगर ऐसे बोला होता इनकम रुपीज 10 lakhs बिलो, लाइक इनकम बिलो रुपीज 10 lakhs बोला होता तो उस टाइम पे ये नहीं आता पिक्चर में आता 32, मतलब माइनस के केस में जो कॉमन था 32 -32/200 ये आता, ठीक है। होपफुली ये एक बार में नहीं समझेगा, और ये होता ही है इतने सालों बाद अगर प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में वो वाली चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं जो जब कॉलेज डेज पे थे तब भी जाके वो टीचर लोग बल्ब के बारे में बताते, एक बल्ब निकाला एक बॉल निकाला फिर दोनों की कंबाइन की, होता था उस टाइम पे भी कंफ्यूजन, इस टाइम पे, बट आई होप कि ये रिपीट अगर इसी को देखोगे ना आप ये क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर, बट जैसे मैंने बोला वेटेज कितना देना है गाइस, ये वेटेज आप यही तक दो जितना हमने डिस्कस किया, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है आप कीजिए इस पे, नो मैटर के, लेकिन वेटेज, हाँ, यस, फर्क आप ये इंटरसेक्शन वाला जो था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हाँ बी, हाँ, ओके, उस which means that probability of A minus probability of B, or it is the probability of A into probability of B, what happens? ओके, ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट था ना वो अपना कॉमन वाला पार्ट था, मतलब जो एडिशन रूल जो, हाँ, बट मुझे वो तोड़ के कैसे बनता है, जैसे probability of A union B you explain की probability of A plus probability of B, right? बराबर, वैसे probability of A intersection अच्छा, B को कैसे, करेक्ट, ये माइनस क्यों आया ना, माइनस, नहीं माइनस आया वो समझ गया, बट हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब उसका तोड़ के क्या होता है, इफ वी डिवाइड मोर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको डिवाइड कैसे करते हैं? ओके, ये डिवाइड नहीं था एक्चुअली, दिस वाज माइनस एक्चुअली, लेट्स फॉरगेट एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? अच्छा, ओके, लेट्स डिस्कस ऑन दिस, सो ए इंटरसेक्शन बी मतलब, ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे अभी जगह नहीं बची, बट लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स, और लेट मी, हाँ ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, और एक अपने इस पे जाते हैं प्लेन वाले बोर्ड पे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वी विल डिस्कस ऑन दैट, वन सेकेंड, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी वाज द इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, सी वी हैव वन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें
वही वाला लेते या फिर दूसरा वाला लेते कि किसी 52 के कार्स में ना, 52 के कार्स में हमने दो दो इवेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली दो इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन मतलब वो जो हमने लास्ट टाइम में जो एग्जांपल लिया ना, उसी को मैं यहाँ पे कंसिडर ये बता रहा हूँ। और अपने ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स। तो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी, कौन सा, एक क्वीन वाला है और ब्लैक कार्ड्स। तो एक वाला जो प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है ये वाला, वो कौन सा है, क्लियरली है क्वीन निकालने का इवेंट, जिससे हम क्वीन निकालेंगे कार्ड्स में से। तो ये एक एक इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे ए, ठीक है, दिस इज आवर ए, ठीक है। और मतलब ये दिस इज इवेंट फॉर ए, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज दैट इवेंट, कि विड्रॉइंग अ क्वीन, क्वीन फ्रॉम द डेस्क ऑफ 52, ठीक है। तो इसमें 52 कार्ड्स में क्वीन विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी अपनी आएगी। क्वीन कितनी होती है, अपने अपने पास क्वीन होती है 4, ठीक है, मैंने ले लिया 4। तो 4 क्वीन जब मैं बोल रहा हूँ 4 क्वीन, तो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 4, उसमें क्या हो रहा है आई डोंट नो, 4/52, ठीक है, 4/52। लेकिन ये क्वीन कौन सी हो सकती है, तो दो क्वीन अपनी जो रहेगी वो रहेगी ब्लैक, वो रहेगी ब्लैक, और दो क्वीन जो रहेगी, एक सेकेंड ना, ये मार्कर जो है कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बीच में वो ये हो रहा है, अपना एरो हो रहा है, ठीक है। दो क्वीन आएंगी अपनी ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, और दो क्वीन आएंगी अपनी रेड वाली, ठीक है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर इवेंट विच इज ब्लैक, कि भाई ब्लैक भी कार्ड निकलने चाहिए। तो अगर ब्लैक कार्ड हम निकाल रहे हैं, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, देखो 30 होते हैं स्पेड के, और 30 होते हो किलर वाले। तो टोटल ब्लैक कार्ड अपने पास होते हैं 26 ब्लैक कार्ड होते हैं बस। बट इन 26 ब्लैक कार्ड में ना क्वीन भी 2 बार आ चुकी होती है, एक तो स्पेड की आती है और दूसरी हो किलावर की, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेक केयर किया है, ठीक है ना, इसको टेक केयर किया है। बट ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई, जब भी ये दूसरा इवेंट हम देखेंगे ऐसा वाला कि विड्रॉइंग अवर 26 ब्लैक कार्ड, बट इसमें ये कॉमन चीज क्या है ना, दोनों में कॉमन चीज ये है कि क्वीन जो है ना, क्वीन जो ब्लैक वाली क्वीन, वो इस इवेंट से भी निकल रही है और वो इस इवेंट से भी निकल रही है, और वो जो इंटरसेक्शन था वो दो वाली ब्लैक क्वीन, एक स्पेड वाली और किलावर वाली, दो वाली। तो ये जो दो वाला जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, दैट इज नथिंग बट आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, जिसको हमको करना होगा माइनस, बिकॉज दिस इज द कॉमन पार्ट एंड वी आर कंसिडरिंग द दिस एंटायर प्रोबेबिलिटी। तो हमारे रूल के हिसाब से, इन आवर एडिशन रूल, when we are adding these two probabilities, then from that addition rule we are subtracting the common वाला part, the a intersection b वाला part हम माइनस करते हैं उससे, a intersection b वाला part। तो अपने इस एग्जांपल में क्या हुआ, द एग्जांपल विच वी वेर डिस्कसिंग इन आवर केस, ये वाला, तो ये वाला केस में when we said कि भाई what is the probability that randomly selected family either buys car, either buys a car or has income of rupees greater than or equal to 10 lakhs। तो क्या हो गया, ये जो इवेंट है ना, ये जो इवेंट है ये दोनों में आ रहा है, बाइज अ कार में भी आ रहा है, ओके, एंड इंटरसेक्शन उसका जो हो रहा है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दूसरा इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकम ऑफ रुपीज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 बार रिपीट हो गया, विच इज इंटरसेक्शन, वो है अपना इंटरसेक्शन। एंड एज पर आवर रूल, आवर एडिशन रूल फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन बी अपना ये था अपने वाले स्टेटमेंट में, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सब्सट्रैक्टेड दिस पार्ट, दैट्स व्हाई वी हैव सब्सट्रैक्टेड 42 डिवाइड बाय आवर 200 वाला पार्ट, वो हमने सब्सट्रैक्ट किया। अगर मैं ऐसे बोलता मेरे क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली बायर ऑफ अ कार, तो बायर ऑफ अ कार बोलूंगा तो फॉर श्योर ये एंटायर पार्ट बायर ऑफ अ कार में आ गया, ठीक है। रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली बायर ऑफ अ कार, हाँ,
either buys a car or has income uh, income of rupees बिलो रुपीज 10 लाख, अगर मैं ये कंडीशन बोलता तो फॉर श्योर ये वाला जो है ये इंटरसेक्शन में आ जाता और हमको इसको माइनस करना पड़ता इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से ये हमें रिपीट मतलब ये इंटरसेक्शन में आता और इसको माइनस करना पड़ता एज पर आवर रूल, एडिशन रूल फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो दैट इज द थिंग. आई होप के यू गेट अ फेयर आइडिया ऑफ दिस. हाँ ब्रो ये पता है मुझे, तो आई हर्ड दिस, बट वो इंटरसेक्शन को फ्रॉम दिस चार्ट वी आर अज्यूमिंग दैट 42 समथिंग आना चाहिए, राइट? फ्रॉम वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द चार्ट ना कि यार ओके ठीक है 42 हाँ, from because from the given data ना, because from I'm the saying- given data, yeah, we are I'm thinking like when we are calculating probability of A union B, हाँ, so how we are calculating like probability of A plus probability of B, right? yes, correct. Like that probability of A intersection B, is there is any formula to calculate that these numbers, or like it is just Formula. Okay, हाँ. that is our okay, that formula multiplication rule. हाँ वो मल्टीप्लिकेशन intersection. रूल अप्लाई होगा ना वहाँ पे, हाँ, yes, yes. so that actually I want to see. Okay. वो मल्टीप्लिकेशन रूल अगर अप्लाई होगा, हाँ. so will that come this value by, अगर मैं वो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दूंगा तो ideally I should get these values, right? Correct, yes, yes. हाँ, वो बस जानना था Okay. कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन आप अगर इस पे लगाते हो Mhm. लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B, राइट? Yes, yes. तो क्या ये वैल्यू आएगी? लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लाइक Correct. A into B, yes. 80 by 200 into हाँ. 80 by B 200, given A, right? yes, B given A, correct. So it will be 80 by 200, right? Yes, you're right. Yeah. So then it is not coming 80 by 42 by 80, right? No. So it is not 42 by 80. Na? It is what we are considering the value, that is 42 by 200. By 200. But now it is coming 80 by 200 into 80 by 200. तो कितना आता है? 1 second. ना क्या yes, 80 By 200. 200. 80 by, हाँ multiply by 42 ना 80 ना. कितना बताया आपने? Yes, sorry. Both are 80 ना. Probability of A is 80 by 200 and probability of B is also 80 by 200 ना. हाँ. ऐसे ही था ना. Okay. I guess so. हाँ. What is the probability of A is 80 by 200, right? And what is the probability of B? हाँ. Buyer of a car is 80 by 200 and income greater than 10 lakh is also 80 by 200, right? हाँ. Yes. So उसका 6400 by 200 आएगा. तो हाँ ये 42 by तो दो जीरो चलेगा ये तो 1 16 by 1 16 आएगा. So 42 by 80 is also 16. Actually we had in this case ना we had ये formula है probability of A intersection B, probability of A intersection B, ठीक है, probability of A intersection B is equal to probability of A, ठीक है, into multiply by probability of B given A, ऐसा आएगा इस वाले केस में. नॉट probability of A into probability of B, ऐसा नहीं आएगा. probability of B given A, because this is our ये जो इवेंट्स है वो डिपेंडेंट इवेंट है ना, इसलिए. Probability of B given A कितना आएगा? 80 by वो 200 minus 80 something, right? 160 आएगा I guess. yes 80 by 160 ना. yes yeah, ठीक है वो कैलकुलेट करके देखना है. तो दैट इज व्हाट करेक्ट. थोड़ा सा ये yes, थोड़ा ये वाला, हाँ, ये वाला इंटरसेक्शन में यूज होगा. yes. ठीक है. Right. So, what is the time? I think 9:16. मतलब we are already like 16 minutes above. So rest of the guys, yeah, I think as per the time already. But for sure we will discuss more on this. Our in the let's say base theorem में इसको और थोड़ा जो base theorem आएगा ना उस पे और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि base theorem is the practical implementation of it, and then we will discuss this multiplication rule उस टाइम पे और ज़्यादा डीप में जाएंगे बेस थ्योरम के केस में, which is the next part in our examples में. ठीक है. या
So I think 9:16-17 हो गए. We will stop over here, guys, and we will meet. Our next session will be on Thursday evening 8 बजे होगा. तब हम आगे का जो भी चीज़ है उसको एक्सप्लोर करेंगे. ओके ठीक है. ये वाला आपने बेस थ्योरम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम, और उसको प्रैक्टिकली एक नोटबुक एग्जांपल में वी विल एक्सप्लोर ऑन इट. वी विल टेक अ रियल वन एग्जांपल लेंगे, and then we will discuss in deep about the Bayes theorem, and we will explore more on that. All right, guys, thank you. Thanks for being here. I'm stopping here, and if there is any concern queries, please feel free to ask. अगर कुछ भी डाउट हो कि भाई मतलब ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का, और द थिंग इज स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा आई नो कि होता है, यू विल फील थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है आपका कि यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ है, फिर आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. इट्स ओके गाइस. इतना भी मतलब रिपीटेशन करोगे तो इट इज वेरी इजी. एंड एज आई सेड के यस फॉर श्योर कि जब आगे बढ़ेंगे तो जो भी हम कवर कर रहे हैं उसमें से थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हम आगे आएंगे डिस्कशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए. बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल आर वेरी लाइक इजी वाले पार्ट. एंड यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग मोर, बिकॉज दोज आर द नीडेड थिंग्स. जैसे कि व्हेन आई सेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, दोज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस मोर ऑन इट. बट आई होप के वॉट एवर द सेशंस विच वी हैव टेकन टुडे, कि पूरा का पूरा नहीं समझा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिंकिंग लगा होगा. आई होप दैट. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. वी विल मीट ऑन थर्सडे. थैंक्स गाइज. थैंक यू.